Respected Mr. Srivastav, respected Mr. Rao, Mr. Kandpal, Ms. Kritika, and most importantly, esteemed students and their mentor. Generally, we have a very good evening to all of you. Generally, we have a habit of speaking in front of camera, not in front of the people, but I'll try my best. When Mr. Pradeep from Amity called me up and say he wanted me to be the panelist on stage and wanted me to speak on the importance of mentoring, it made my mind think what is mentoring in this world, right, in present world. I was thinking I wanted to have one good example of good mentor which I can mention here so that we can follow that example. But before that, I'll give you example. I'll have a very small experience of how mentoring is different in today's world. One of my colleague was telling me that he was being given farewell in one of the organization. So one small colleague, a very young colleague came to him and he said, "Sir, although I have not got a privilege to work directly under you, but I have watched you from distant and learned a lot. And I feel that I have learned many things from you, which I will apply in my future career." So my colleague told him, "Okay, so you are like Eklavya, who has learned from Guru Dronacharya from watching him from distance because he refused to give him lesson directly." So the student, that young employee told him, "Yes, sir, that's all right. I'm like Eklavya, but please don't ask me for the Guru Dakshana of my thumb." Why I'm not going to ask you? Well, no, it's very important to, give SMS, and I need the thumb for SMSing my girlfriend and my friends. So I cannot give you my SMS. You can ask me anything. So, so the mentoring and basically it's Guru Shishya tradition, which we always have in our Indian tradition, which is right now called mentor and mentee. Basically, it's Guru and Shishya. We have so many examples. If you see our history, if you see our Puran, Vedas, you will find so many examples of Guru and Shishya. But right now in present situation, present society, there is no such thing has left because if there would have been a mentor and mentee tradition come towards the modern society also, then we would not have this Bhai Bhatija Vaad or Vanshvad. Because you would have good Shishyas, good mentees coming up and taking charge instead of somebody's son, somebody's daughter, somebody's brother taking charge. Because that's what's happening. I'm a journalist, so mostly we deal with this kind of people, so that example came to my mind. So what is the importance? Then again I kept thinking, क्या हो सकता है कि एक बहुत अच्छा उदाहरण हो? राजनीति में मुझे लगा कि नेहरू ने जो लेटर अपनी बेटी को लिखे थे और उसमें जो उन्होंने उनको पूरी जिंदगी के बारे में बताया था, शायद उसकी वजह से इंदिरा गांधी एक अच्छी नेता हो पाई, अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो। लेकिन मुझे और आज के में ऐसा कोई उदाहरण नजर आता नहीं कि जिसमें देयर आर सम गुड मेंटर्स इन पॉलिटिक्स जिन्होंने काफी अपने शिष्यों को आगे बढ़ाया हो। मैंने और सोचा कि और क्या उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन आई फेल्ड एक्चुअली। आज के जमाने में कोई ऐसे बहुत अच्छे उदाहरण बचे नहीं हैं जिसमें कि अच्छे गुरु हों और उनके शिष्य अच्छे हों। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि अमिटी यूनिवर्सिटी ने ये चीज शुरू की है कि मेंटर हो और मेंटी हो, चाहे उसको उन्होंने कंपलसरी किया हो या किसी तरीके से उसको उदाहरण बनाया हो, जरूरी बनाया हो। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जिससे कि जो नए लीडर्स आएंगे, बेसिकली अमिटी इज प्रोड्यूसिंग लीडर्स ऑफ टुमारो who will take India forward. They will take charge of India, corporate world. They will become good leader in corporate world. There are some leaders sitting here on the stage also. This is a very good start. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि मेंटर से ज्यादा जरूरी है कि जो मेंटी है, जो आप लोग स्टूडेंट हो जो यहाँ पर, वो उस चीज को सीखने के लिए ज्यादा उत्सुक हों, उसका आप ज्यादा उपयोग करें। यहाँ पे जितने भी नाम सुने मैंने जिनको अवार्ड दिया गया, काफी अपने अपने स्थान पर काफी बड़े बड़े लोग हैं, मेंटर से काफी उन्होंने मेहनत की है, काफी आगे बढ़े हैं। उनके एक्सपीरियंस से, उनकी नॉलेज से, उन्होंने जो सीखा है अपने, उनसे आप लोग काफी सीख सकते हैं यहाँ के छात्र। और आप
इसको काफी गंभीरता से ले सकते हैं। आप इसको अगर गंभीरता से लेंगे, ये आपके कैरियर में काफी आगे काम आएगा। आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई चीज अपने, क्योंकि हर कोई चीज सीख के नहीं आता है। जो अच्छे आपके मेंटर हैं वो आपको बता सकते हैं कि किसी चीज को किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस आप कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जो प्रथा है जो शुरू की है एमआईटी ने, और इसका यहाँ के छात्रों को काफी अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए और आपको इसको काफी सीरियसली लेना चाहिए। और क्योंकि ये जो अगर आप देखें तो ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है, इससे बहुत, आप आएंगे क्लास में, आपके टीचर पढ़ाएंगे, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आप अच्छे अंक ले आएंगे, अच्छे यू विल गेट गुड मार्क्स, लेकिन एक वो किताबी ज्ञान होता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो फील्ड में हैं, वो अगर आपके मेंटर हैं, वो अगर आपको बताएंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करेंगे, वो अपनी डिफिकल्टीज आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने उस डिफिकल्टीज को कैसे ओवरकम किया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। ये जो प्रैक्टिकल उदाहरण है ये आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है एमआईटी की, जिसको कि यहाँ के छात्रों को अच्छे तरीके से अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। उनको अपने मेंटर्स के साथ लगातार संपर्क में होना चाहिए और ये उनके लिए अपने भविष्य में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। और मुझे, क्योंकि मैंने और भी कई बार हम जाते हैं, कई मीडिया कॉलेजेस में हम जाते हैं और वहां पे बात करते हैं, जो सबसे बड़ी कमी नजर आती है कि कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता कि हम आगे क्या करें, अपना आगे करियर कैसे बनाएं, किस ब्रांच में जाएं, क्या करें। तो ये जो मेंटी और मेंटर की जो परंपरा है, इससे आप इस चीज का आराम से सोल्यूशन पा सकते हैं। ये आपके लिए काफी हेल्प हो सकती है इसके लिए। और ज्यादा चीजें इसमें हम इंटरेक्टिव अगर होंगे, सवाल किसी के होंगे तो उसमें ज्यादा बेहतर हो पाएंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू।